Hello everyone, a very good afternoon. I am Dr. Rashmi Tiwari, working as a consultant gynecologist in Ambikapur, Chhattisgarh. I welcome you all and I welcome Sir. Sir, our teacher, our mentor, Dr. Professor Colonel Pankaj Talwar Sir, VSM MD and PhD. Sir is PhD in clinical embryology. Sir is CEO at iHoma Fertility Clinics and IC Training Academy, Gurugram, Delhi. Sir is also Dean at Department of Clinical Embryology, University, Dean at Department of Clinical Embryology, Sridhar University, Pilani. Sorry. And Sir is also a mentor of students across the world. Sir has trained in ART around 20, students in ART around 23 countries. And Sir has done more than 100 publications. Sir has edited 9 books. Sir is also the founder of Global ART Digital School. Sir is a renowned personality, and we don't need we are whatever we will introduce about Sir. I think for me it will be less because Sir has done more than what I know, what I can say in this session, and I'm feeling very honored to be a part of this Facebook live series. And today in our Facebook live series, we will be presenting very important and very less talked topic. What is costing of IUI? Like patient want to have IUI, but patient don't know कि वो कितना उसे कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना पैसा उससे ज्यादा लिया जा रहा है. So today we will ask sir कि sir what is IUI? First of all, what is IUI and what is the basic steps involved in IUI, so that we can proceed कि what is the costing in each step. So please sir explain what is IUI. So thank you, Rashmi, for the kind introduction. So we meet again. I think हमने एक promise किया था सबके साथ कि we'll be meeting every 15 days. And, Yes sir. So we are back with all of us around. So I think हमारा जो audience रहेगा आज का, there'll be doctors, there'll be patients, there'll be people who just want to learn about IUI. So सबसे पहले ये IUI क्या होता है? What is IUI? Yes. IUI is a very basic technique called which we use in cases of infertile couples. IUI stands for intrauterine insemination. Okay. इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, एंड इंसेमिनेशन मतलब इंसेमिनेट करना, यानी कि यूट्रस के अंदर शुक्राणु को जो डालने की क्रिया होती है, वी कॉल इट इंट्रा यूट्राइन insemination. So as we move up in this particular talk, let's look at what is the normal uterus and how does it look like for all of us. How does the normal uterus look like? So for this, I'll show you a small model. I always like to show people the models to understand better. When you look at this model, you'll find that we have something here. इसके अंदर you'll find that we have with the vagina below. This is the vagina, and from the vagina there's cervix, and from cervix we go here. We find is the uterus. That's called the uterine cavity. And uterine cavity के बाद there are two fallopian tubes. As you can see, there are two fallopian tubes are present here on both the sides. और ये ovaries होती है. And every month a woman will ovulate one egg. As you can see here, she's ovulated from this particular side on the right side. And these are fallopian tubes. The fallopian tubes are like this. You can see them properly. They're like our fingers. So they will catch the egg. They will catch the egg which comes from here. This is the egg which comes out in the fallopian tube, caught by the fallopian tube, and then when the egg is in the fallopian tube, and in case at that point of time, अगर एक couple आपस में relations रखते हैं, that's a time when the sperms will start moving from the vagina up. The sperms will start moving up. The white ones are the sperms here. They move up, and they will go and sperms are going up, and they will fertilize the egg here. This is simple the way it happens in the woman all the time. But in case we do an IUI, so what we do is we will here use the technology where we use a small plastic cannula and put the semen sample inside the uterus. So IUI हम कब करते हैं? The intra मतलब अंदर, uterus मतलब uterine cavity,
and absolute insemination is putting the sperms inside. That's called IUI. जब भी किसी भी स्त्री की ट्यूब्स खुली होती हैं, एक या दोनों, और अगर स्पर्म काउंट कम होता है हस्बैंड का या नहीं होता है, देन वी डू अ थिंग कॉल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. सो आईयूआई करने के जो कॉमन कारण है वो है, जैसे बोलेंगे कि पीसीओडी. जब एक लेडी ओवुलेट ही नहीं करती है, उसके अंडे नहीं बनते हैं, सो वी गिव हर सम टैबलेट्स, मेक हर ओवुलेट, यानी कि उनके हम अंडे को रिलीज करते हैं टीका लगाकर, और तब हम आईयूआई करते हैं. दैट इज कॉल्ड डूइंग एन आईयूआई फॉर ए पीसीओडी पेशेंट. द सेकंड इंडिकेशन विल बी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि कपल साथ में रह रहा है बट दे डोंट हैव ए चाइल्ड एंड वी डोंट नो व्हाई दे आर नॉट हैविंग ए चाइल्ड. इट इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. तो यहाँ पर भी हम वी यूज द टेक्निक ऑफ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. हमारा एम यही है कि जब भी एग ओवुलेट करता है, एग ओवुलेट्स, एग बाहर आता है, उस समय पर हम एक through the process of ultrasound we find out whether the egg has ovulated or not, and in case it has ovulated, we take the husband's semen sample and we just put it inside the womb of the woman using a small plastic cannula. So we use something like this. It's a plastic cannula we use. We'll talk about it in some time, and this is what we Yes. use, through which we put this thing inside the uterus of the woman. ये हम डालेंगे यूट्रस के अंदर और इसके थ्रू हम स्पर्म्स को इंजेक्ट कर देंगे. दैट इज कॉल्ड आईयूआई. तो रश्मि से कुछ और कारण भी होते हैं. अगर किसी जो एक दंपति है हमारे पास, एक कपल आता है हमारे पास में, Yes. और उस कपल हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं है बॉडी में, स्पर्म्स नहीं बना पाता है हस्बैंड, दैट केस वी गो इन फॉर ए डोनर आईयूआई. सो आईयूआई दो तरह का प्रोसेस है. एक तो होता है हस्बैंड के सैंपल के साथ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ आईयूआई, एंड एक होता है डोनर आईयूआई. द डोनर आईयूआई वी हैव टू यूज डोनर सीमेन and then we carry out IUI. So common indications are these two: anovulatory, when the PCOD में जब किसी स्त्री के एग बनते ही नहीं है, then we try to make her eggs by giving her some tablets and some injections, and they all cost money. इसलिए हमने आज का टॉपिक चुना कि एक IUI में खर्चा कितना आता है. Yes. आपने मुझे बताया कि अंबिकापुर के अंदर खर्चा तकरीबन जाता है 30,000 का, 30,000. Yes. कुछ जगहों Approximate. पे खर्चे कम होते हैं. हाँ, अप्रोक्सीमेटली द रेट में वेरी. टुडे विल टॉक कि इसका खर्चा इतना क्यों है और क्या खर्चा, एक राइट खर्चा क्या होना चाहिए. सो हमारा Yes. एम इज टॉक करके हम एक जागरूकता क्रिएट करें. हम चाहते हैं कि जब हम बात करें तो जितने हमारे मित्र हैं यहाँ पे जो आज हमारे साथ शामिल हैं, वो जान पाएं कि इसमें कितना खर्चा आना चाहिए, हाउ मच शुड इट कॉस्ट. दिस इज व्हाट वी वांट टू एड्रेस टुडे विद ऑल ऑफ यू. Yes. Other conditions are when the husband is unable to ejaculate, when the husband has got some issue, they cannot have a normal contact with each other, तब भी हम Yes. IUI का प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं. और एक चौथा फैक्टर है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा IUI करते हैं, वो है कि जब हस्बैंड का स्पर्म काउंट इज ऑफ पुअर क्वालिटी, द सीमेन काउंट इज लो, और इट हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ, जो कि शुक्राणु का जो क्वालिटी है खराब होता है या नंबर कम होता है, तब हम IUI करते हैं. We'll take the semen sample and we clean it by using some sort of techniques. And after cleaning, we'll again use this catheter and inject the semen sample inside the uterus. That is called intrauterine insemination. इसके 4 प्रमुख 1, 2, 3, 4 जो कारण है मैंने आपको बताए, और सब में results are of a different nature, and I think it's a very preferred technique for any couple who's unable to conceive. We should use IUI. In case the tubes are open, अगर किसी भी स्त्री की एक ट्यूब या दोनों ट्यूब ओपन हैं और स्पर्म काउंट ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोर देन 3 to 5 million count, after we have done the semen preparation, we should do it for IUI in all the cases. Before we move to IVF, हमको किसी को भी 3 से 6 अटेम्प्ट IUI के देने चाहिए. Yes. सर, तो लाइक अगर किसी कपल ने डिसाइड किया कि उसे IUI करवाना है, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द मेन टॉपिक कि अभी इसका खर्चा कितना आएगा. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल साइड से कितना खर्चा आएगा. लाइक उस डॉक्टर की कंसल्टेंसी होगी, अगर हम इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो अभी ट्यूब्स ओपन नहीं है तो उसके लिए मे बी हम HSG करवाएंगे, स्कैन करके देखेंगे उसका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, उसका सोनोग्राफी कराएंगे,
और उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी कराना चाहेंगे, तो ये सारी इन सब के लगभग कितने कॉस्ट पड़ जाता है सर पेशेंट को? देखिए, पता है ये कॉस्ट बहुत वेरिएबल रहता है और ये डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस, सिटी टू सिटी। ओके, हाँ, यस सर। हमको ऐसा लगता है हमेशा कि एक सिटी अगर बड़ी है तो वहाँ पे कॉस्ट कम होगी, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। यस। So, example for you will be Rashmi, in case I want to order a book or I want to order anything online, यस। I'll यस। get the delivery in Delhi within few hours, दो यस। घंटे में या 11-12 मिनट के अंदर। आजकल तो हमारे पास ब्लिंकिट है, देन इंस्टा है जो स्विगी का प्लेटफॉर्म है, ब्लिंकिट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ जोमेटो। दे गिव यू, उसका नाम ही ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट मतलब आँख झपकी और आपके पास घंटी बज जाती है, सर आपका सामान। या टमाटर ले लीजिए, चाहे आप पेन कलम ले लीजिए, यस सर। 12 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। यस। सेम थिंग हैपेंस इन ब्लिंकिट, इन इंस्टा और स्विगी। तो इसी तरह से जो भी चीज़ हमें चाहिए आईओआई करने के लिए, हमारे पास एक फ़ोन पे अवेलेबल है। हम एक फ़ोन करेंगे और हमारे पास डीलर आकर वो दवाइयाँ, टीके और सारा सामान हमें दे देता है। बट अगर आप एक अंबिकापुर के अंदर, जो बड़ी खूबसूरत जगह है अंबिकापुर, इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई नो दैट्स इन यस। साइड ऑफ रायपुर इन छत्तीसगढ़। तो आज हमारा एक जो बात हो रहा है, तो अंबिकापुर आई विल से इट्स ए टियर बी सिटी। इट इज नॉट ए सिटी लाइक दिल्ली और गुरुग्राम जहाँ पर मैं काम करता हूँ। यस। इट्स अ स्मॉल सिटी। तो वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी महंगी मिलेंगी, वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम है, यस सर। डॉक्टर कम है, यस सर। पेशेंट होंगे पर चीज़ें मिलती नहीं है, अवेलेबिलिटी यस। होती है सारी के साथ में। सो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्राइस होती है किसी भी प्रोसीजर का, मुझे लगता है कि दिल्ली में रेट ज़्यादा होंगे, पर ओवरऑल देखें तो एट योर प्लेस द प्राइसेस मे बी हायर ऑफ इट, थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इधर। यस सर। अभी आप इसको दो भाग में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको अगर आईओआई करना है तो हम कितना खर्चा एक्सपेक्ट करें और कितना खर्चा, डॉक्टर्स कितनी फीस लेते हैं। सो अगर आप यूनिट में फ़ोन करेंगे, आप बोलेंगे मुझे अपना आईओआई कराना है, क्या खर्चा आएगा, तो हम लोग क्या बताते हैं, हम कहते हैं कि आईओआई का खर्चा आएगा से 9,000 और 10,000, सम पीपल से 15,000, सम पीपल से 7,000। बट ओवरऑल एज अ टीचर, व्हेन आई कम अक्रॉस स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इसका टोटल खर्चा तकरीबन पड़ता है 10 से 12,000 के बीच में एक प्रोसेस करने का। इसके ऊपर जो खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं। सो अगर पेशेंट का मैंने प्रोसीजर करा, पीपल चार्ज एनीवेयर बिटवीन 7 to 8 to 10 to 15, 20,000 रुपीज। दैट इज फॉर द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर सिर्फ छोटा सा प्रोसीजर है, सिर्फ 20 मिनट का, बट इतना खर्चा पेशेंट को करना पड़ता है। एंड दैट विल इन्वॉल्व नॉट ओनली एन आईओआई बट ऑल द पेपर वर्क। तो रश्मि, आपको समझना है कि अभी ये प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी चीज़ कर दी, एक ये प्रणाली कर दी, इसके लिए आपको ना काफ़ी पेपर वर्क करना होता है। सो यू हैव टू फिल यस। फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8। आपको याद होगा, आफ्टर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यस सर। हमारे देश में अभी लॉज हैं क्योंकि बहुत ही यस। बेहतरीन लॉज हैं, और हम पेपर वर्क बढ़ जाता है। जब भी कानून आता है तो पेपर वर्क बढ़ जाता है। तो यस। पेपर वर्क पूरा करना, पेशेंट की आइडेंटिटी को मालूम करना कि दोनों आपस में मैरिड हैं यस सर। या दोनों किसी तरह का उनका रिलेशनशिप है, उसको जानने के लिए उनके फोटोग्राफ्स निकालना, उनका आधार कार्ड चेक करना, उनका मैरिज सर्टिफिकेट चेक करना, एक एफिडेविट लेना कि हाँ आप दोनों दंपति हैं। इन आवर कंट्री, लिव इन पीपल कैन नॉट गेट आईयूआई डन। A single woman can get it done, but a live-in couple cannot get it done. You are aware of that, so we have to see that a couple is married. पूरा पेपर वर्क ताम झाम करने में और एक प्रोसेस करने में खर्चा आता है तकरीबन कम से कम नहीं तो 10 से 12,000। ओके सर। इसमें क्या क्या, इसके भाग क्या क्या होते हैं? यस। इसके मोटे मोटे भाग होते हैं। एक तो पेशेंट के 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं अलग से। फॉर एवरी अल्ट्रासाउंड वी चार्ज पेशेंट रुपीज से 500 to रुपीज 1500 डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी आर वर्किंग। अब मान के चलते हैं, चलो हमने 500 रुपया एक स्कैन के लिए चार्ज कर लिया। यस सर। फॉर एन आईयूआई प्रोसीजर वी कॉल द पेशेंट ऑन सेकेंड डे ऑफ प्रोसीजर। सेकेंड डे पे पेशेंट हमारे पास में आते हैं और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास हमारी बहन आई है, तो उसका इसके अंदर हम क्यों आईओआई कर रहे हैं। तो आईओआई हाँ। करने के काफ़ी कारण है, वो हमें जानना होता है, वो हम पहले से पता करके रखेंगे। वो कहते हैं प्री ट्रीटमेंट पीरियड रश्मि। ओके। तो आईओआई करने से पहले का एक वो समय है
सो अगर एक आप एक डॉक्टर हैं अंबिकापुर में और मैं अगर दिल्ली में बैठा हूँ, सो पहले जब पेशेंट आएगा तो हमें बिलिंग शुरू होता है। तो पहला बिलिंग होगा उसके वर्कअप का। हम जांच करेंगे थायराइड का, प्रोलैक्टिन का, Yes. विटामिन डी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू, Yes, sir. हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, खूब सारे उनके टेस्ट होते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि ट्यूब्स खुली हैं कि बंद हैं। अगर उनकी ट्यूब्स ही बंद हैं, देन वी कैन नॉट कैरी आउट देयर IOI. आईयूआई। Yes. आईयूआई चेक करने के लिए ट्यूब्स चेक करेंगे। दैट इज Hmm. कॉल्ड एचएसजी और एसआईएस और मल्टीपल टेक्निक्स आर देयर टू चेक फॉर ट्यूबल पेटेंसी। सो आपको जानना होगा कि एक और मॉडल दिखाता हूँ मैं आपको, कि हम पहले जानना चाहेंगे कि अगर ये योनि का रास्ता है, ये Yes. सर्विक्स है, ये यूट्रस है, गर्भाशय कहते हैं इसको, और ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं। देखो ये फेलोपियन Yes. ट्यूब्स, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं। तो इन Yes. फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हम डाई डालते हैं नीचे से। ये जो सर्विक्स है ना, Yes. यहाँ से पैप में लेते हैं, यहाँ से हम एक डाई डालेंगे और चेक करेंगे कि डाई ट्यूब से बाहर आ Bar. रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड ट्यूबल टेस्टिंग। जब हम ट्यूबल टेस्टिंग कर लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ट्यूब्स खुली हैं, ट्यूब में से डाई बाहर आता है। तो दिस कैन बी एन HSG, इट कैन बी ए टेस्ट which you do under ultrasound guidance, that is called SIS। मैं बहुत सारे नाम लेके लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, बट इट्स Yes. कॉल्ड SIS, HICOSI, HSGs, all these testings are being done to look at the tubal patency। Tubal patency. टेस्ट का इसमें जो खर्चा है मार्केट में, people charge around rupees any amount between 3 to 5 or 6,000 rupees, इतना Yes, खर्चा sir. आता है। सो मान के चले कि हमने जो बॉडी में टेस्ट कराए, यूरिन के, ब्लड के, शुगर के, हार्मोन्स के अगर जांच हम कुछ करना चाहते हैं तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार का खर्चा आता है ये टेस्ट करने का। Yes, sir. अब हमको रश्मि, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वी शुड मेक आईयूआई वेरी चीप। सी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो परेशान होते हैं, तो वी शुड ऐड ऑन टू दैट एक्सपेंडिचर। बेसिक Yes, चीज़ें हमें वही करनी चाहिए, वी शुडंट गो एंड डू बिग टेस्ट फॉर दैट। Yes, sir. फिर भी हीमोग्लोबिन, यूरिन, ब्लड शुगर, ये कुछ बेसिक टेस्टिंग करनी है, Yes, ये sir. हमें करना है। HSC हमको करना है। और फिर डॉक्टर रश्मि, वी हैव टू डू अ टेस्ट कॉल्ड HIV, VDRL, HPSAG, NTHCV। Okay, ये okay. दोनों प्रॉब्लम के लिए होते हैं। हस्बैंड का सीमेन का जांच होता है, तो Hmm. हस्बैंड का जांच का प्राइस विल बी अराउंड ₹1,000 Yes, मिनिमम sir. मंथली चार्ज। Yes, एंड sir. देन वी गो टू द वुमेन, उनमें जो कॉस्ट होगा ट्यूब टेस्टिंग का तकरीबन होगा 3 से 4,000 रुपया। उसके बाद टेस्ट होंगे तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये के। तो बिकम्स अराउंड वाइफ के लिए खर्चा आता है तकरीबन 5,000 का, 6,000 का, पूरे जांच का। Yeah. And Okay, the sir. expenditure on the husband will be somewhere around rupees 1,000 or 1,500 rupees or 2,000 rupees for all the testing for him also. We have to do screening for thalassemia, we have to do their hemoglobin, blood sugar in the husband also। सब करने में Yes. तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है पूरे जांच करने में। Okay. सब तो जांच हो जाते हैं, तो नाउ वी आर श्योर सब पूरे जांच हो गए हैं, एंड नाउ द पेशेंट रेडी फॉर कैरिंग आउट एन आईयूआई। IOI. कारण Yes. हमें पता है जो छोटा मोटा हमें ट्रीटमेंट करना है, कुछ हमें गोली खाने को देनी है, कुछ गोलियां खाने को देते हैं पेशेंट्स को, तो वो अलग से खर्चा करती हैं, तकरीबन 2 से 3 हज़ार का खर्चा आता है कुछ विटामिन का, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए। सो मान के चलेंगे अराउंड 10,000 विद एक्सपेंडिचर इन डूइंग प्री ट्रीटमेंट। Okay, So sir. before we start an IUI, we have spent around rupees 10,000 on the couple as Treatment. well, on the pre-treatment। Yes. तो इसके बाद होगा ट्रीटमेंट शुरू। Yes, sir. Day of treatment, the girl will come to us. She'll come to us on second day of the periods. We'll do an ultrasound. तो फिर एक बिलिंग में ऐड होगा अल्ट्रासाउंड। Yes, sir. We do an ultrasound every 3 to 4 days. We need around 3 to 4 ultrasound for every woman for an IUI approximately. Okay. So around 2,000 for the ultrasounds again. Fine. And then we will take some consultation also, because this consultation is not part of that. So 2 consultation हो गई, तो उसके बाद जो हमने IUI करा उसका अराउंड 8 to 10,000 रुपीज। तो मान के चलेंगे अराउंड 25। उसके अंदर फिर हम विल गिव देम सम टैबलेट्स फॉर मेकिंग एग्स, क्लोमिफेन देंगे, लेट्रोजोल देंगे, जो कि तकरीबन 300 रुपए की आएगी। विल गिव देम 3 or 4 इंजेक्शंस ऑफ HMG। Yes, sir. And every session is costing around rupees 1,000। So अगर हम एक रबर बैंड को
कितना भी देरी से खींचे या तेजी के साथ खींचे, समवेयर अराउंड 22 से 23,000 खर्चा आते हैं IUI करने का, पूरे पूरे प्रोसेस का, फ्रॉम डे शी कम्स टू यू एंड द डे वी डू एन IUI, it costs you around rupees 20. 23-24,000. This will include ultrasounds, OPDs, workup, some basic medicines. और जब IUI हो जाता है, then we add some more medicines to her. It will cost her around rupees 2,000 more. For some progesterones we give it to her, we may give her some support when the report comes. So मैं ये मान के चलूँगा कि पूरा प्रोसेस में खर्चा आता है तकरीबन 25,000. Even for an IUI cycle, patient have to spend, and that's not only for IUI, that's for the workup and doing an IUI. It may vary between 20 and 25,000. What is your opinion? How much are you charging in Ambika Poti? और पे कितना आपके 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 विचार से कितना खर्चा आता है छत्तीसगढ़ के अंदर एक IUI करने का? Sir, it should, मतलब I think it's 25,000. Mostly it's 25 plus 25 to 30, somewhere between 25 to 30. Maybe because of the different consultancy or charges in sonography maybe varies, or because like drugs and consumables will be the same price, and Yeah, so consultancy, because of the poor availability of the products, we have to order, and we have to order from we have to send the test also. Not every lab used to do hormonal assays, and sometimes for some tests they used to send it to Mumbai or some big places, so they charge some extra. So I think because of these things, these factors, they charge little more than this. 25,000 से तो ज़्यादा ही लगता है. यहाँ पे रश्मि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमको ना कम से कम जांच करनी चाहिए, और हम हार्मोन की टेस्टिंग करते नहीं हैं IUI के लिए, नॉट रिक्वायर्ड. Yes, sir. एक समय पे हम AMH किया करते थे, we used to do Yes, sir. FSH, LH, E2. So I don't think we need to do any such major blood testing for the woman. Not required. But yes, sir. But here, मतलब FSH, LH, day 2 LH, FSH, still it is done here, and I don't know, like as you teach us, like it is not required, but I have seen people used to order this LH, FSH, AMH, everything. So ये हमें सब these नहीं करना things है. cost still extra. So ये they'll add on to the cost. We have to keep do a very friendly IUI for the people. देखो, Yes, sir. एक बहुत ही छोटा सा एक टेस्ट होता है, छोटा सा एक तरीका है, वो किसी भी तरह से ना यू टू रिड्यूस द कॉस्ट, और वही हमारी विक्ट्री है डॉक्टर्स. Yes, sir. बिकॉज यू नीड, देखिए कम से कम 3 या 4 IUI हम करते हैं कपल के लिए, ठीक है. Yes, sir. तो अगर हमने एक 30-35 हज़ार में एक IUI करा और रिजल्ट एक IUI साइकिल का आता है 12 से 13% क्यूमुलेटिव, Okay. तो मान के चलें यू गेट अराउंड 15% चांस ऑफ गेटिंग द प्रेगनेंसी, 20%. Yes. पर नहीं होता है IUI का रेट. Now in case you go for IVF, you get result in terms of 60-70%. The costing Yes. there is 1.5 lakh rupees. तो अगर हमने 3-4 साइकिल में खर्च कर दिया तकरीबन 70-80,000 और 1 लाख, फिर हम IVF ही क्यों ना कर दें पहले अटेम्प्ट के लिए. Yes. So we shouldn't be doing, even for IVF I say, we should use our clinical acumen. अगर हम अपना Yes. clinical acumen इस्तेमाल करेंगे ना रश्मि, so we can Yes. always do better. So we should work scientifically and bill patient the minimum. ये हमें हमारा जो मेन एम है फेसबुक लाइव करने का वही रहता है कि हम सबको बताएं कि इतना खर्चा नॉर्मली आता है और हमें कम से कम अमाउंट में केस करना चाहिए. तो हार्मोन हम लोग नहीं करते हैं आज. ओके सर. सर लाइक आपने अभी जो बताया वो तो हस्बैंड की सीमेन सैंपल से था. सम टाइम हस्बैंड इज नॉट प्रेजेंट, he has to be outside because of maybe some important work, and he could not be available for the next cycle, and patient need to undergo IUI. So husband get his semen sample freeze. So in that case, then costing of IUI will be more, because then we have to thaw the sample and everything. So Yes. what will be the cost of these things? तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग वी आर टेकिंग द सैंपल एंड फ्रीजिंग इट. So Dr. Rashmi, we normally freeze 2 samples because husband जब जाने वाले हैं तो हम 2 सैंपल फ्रीज कर लेते हैं, 3 सैंपल फ्रीज कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम एंड द कंसंट्रेशन व्हिच इज अलाउड एज पर द लॉ. सो आप तकरीबन मान के चलें सैंपल को
फ्रीज करने का खर्चा है, और फ्रीज करने के बाद सैंपल को प्रिजर्व करने का खर्चा है अंडर लिक्विड नाइट्रोजन। ये खर्चे दो तरह के हैं। Okay. एक चार्ज है लेबोरेटरी के, लेबोरेटरी चार्ज में हम सैंपल को फ्रीज करते हैं, एक टेक्निक होती है, उसके अंदर हम कुछ केमिकल डाल के सैंपल को फ्रीज करते हैं, और उसके बाद सैंपल को रखना होता है हमें अंडर लिक्विड नाइट्रोजन इन कंटेनर LN2। जैसे हमने फ्लास्क देखा है ना, ईगल का फ्लास्क होता है जिसके अंदर हम चाय ठंडा रख लेते हैं, बर्फ रख लेते हैं, वैसे हमारे पास क्रायो कैन होते हैं, कंटेनर, जिसके अंदर वी कैन पुट LN2 लिक्विड नाइट्रोजन, उसके अंदर हम सैंपल को फ्रीज कर देते हैं। तो उसका अलग से खर्चा आता है प्रिजर्वेशन का। तो नॉर्मल अगर आप देखें तो 3 से 4 महीने का जो खर्चा है सीमेंट फ्रीजिंग का, वही तकरीबन आता है 15,000 रुपये, 15,000, और ईयरली बेस पर होता है। तो 15 से 20,000 रुपया लोग चार्ज करते हैं सैंपल फ्रीजिंग का। डॉक्टर रश्मि, टू डू द प्रोसीजर अगेन इसका खर्चा है। Yes, sir. टोटल विल बी अराउंड ₹30,000 फॉर Okay. freezing and keeping the sample with you. It's around 30 to 35,000 rupees per year people charge. So अलग से खर्चा है। So अगर आप रखें 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, खर्चा उतना ही रहता है। So Yes, that's sir. it. In that case, cycle will become more expensive because we are doing 2 samples. उसको Yes, sir. खर्चा आएगा, एम्ब्रोलॉजिस्ट का खर्चा आएगा, डॉक्टर का, Yes, sir. लिक्विड नाइट्रोजन का, और फिर एक Yes, तरह का श्योरिटी लेने का कि सैंपल उनका सेफ रहे। In that case, your IUI will touch around rupees 40-45,000. सर With the फ्रीज help- सैंपल से Yes. सर बोलिए। फ्रीज सैंपल से क्या आउटकम अफेक्ट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर हमारा सैंपल में रिकवरी ठीक होता है। अगर हम तकरीबन 12 से 15 मिलियन स्पर्म काउंट अचीव कर लेते हैं पोस्ट थॉ सैंपल, यानी कि पहले सैंपल को फ्रीज किया हमने, तो उसमें Yes, काउंट sir. ठीक होना चाहिए। और अगर हम उस पेशेंट के अंदर हम तकरीबन 14% मिलियन का काउंट अचीव कर लेते हैं आफ्टर थॉइंग मतलब गर्म करना। पहले हम Yes. सैंपल को फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, Yes, sir. और फिर हम गर्म करके IUI कर देते हैं। तो अगर हम सैंपल को फ्रीज करना और गर्म करने के बीच में अगर हमसे गलती नहीं होती है और सैंपल भी अच्छा है, तो हम अराउंड 50% ऑफ स्पर्म्स को रिकवर कर लेते हैं, 50 से 60% को। सो अगर हमारे पास 14 से 15 मिलियन स्पर्म्स मिल जाते हैं हमको, तो इसका आउटकम बड़ा अच्छा है। दीज स्पर्म्स हैव बीन फ्रोजन, थॉड, ये बड़े हार्डी स्पर्म्स होते हैं, वेरी गुड स्पर्म्स एंड गिव वेरी गुड आउटकम। तो इसमें फर्क नहीं आता, अगर आप ठीक से करेंगे तो फर्क नहीं। Yes, sir. सर एक और क्वेश्चन, ये तो थी अभी हस्बैंड सीमेन की बात। अगर हस्बैंड की काउंट कम है और वो डोनर से अगर IUI डोनर के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो तब क्या चार्जेस लगेंगे? क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे? यस, ये सवाल तो बहुत ही एक जलता हुआ सवाल है आजकल के ज़माने के अंदर। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर हम एक चेक करें, देश की हम हिस्ट्री चेक करें, Yes. तो देखो डोनर सैंपल तो सबको ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप बोलें सम पीपल नीड कॉर्निया रिप्लेसमेंट, सम पीपल डू स्किन ग्राफ्टिंग, some people go in for liver transplant, some people take heart transplant, some people do kidney transplant. You're aware transplant we need as humans. हमारी बॉडी है एक मशीन के जैसे, कोई पार्ट खराब हो जाता है तो देन वी हैव टू टेक फ्रॉम समबडी एल्स। सो अगर हम सैंपल को if you take the sample from somebody else, it costs money. और हमारी कंट्री के अंदर आज से कुछ समय पहले तक, कुछ से 8-10 साल पहले तक, एक डोनर जो स्पर्म डोनर है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं कि कौन स्पर्म डोनेट कर सकता है। Yes, sir. सैंपल देते थे तो पहले ही नंबर जाता था 75 सैंपल्स पर पेशेंट, फिर हो गया 25। लेकिन पहले नंबर बहुत हाई था, इट वाज अनरेगुलेटेड। यानी कि एक पेशेंट अभी कुछ साल पहले तक 25 सैंपल दे सकता था। 25 बार he could give sample. The sample would go to multiple women in the country and they could get fertilized by the donor sperm. डोनर स्पर्म कब होता है? जब किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसके अपने शुक्राणु नहीं बनते हैं, then we carry out donor insemination. You know, that's the main indication. अगर आप देखें, अगर आप किसी भी जगह पे चेक करें, large number of women nowadays, in large number of people in यूक्रेन, रशिया, इजराइल जो वॉर चल रहा है, सोल्जर से गो एंड बैंक देयर सीमेन सैंपल, लार्ज नंबर। When they go for the war, the semen sample is banked. That is called
ऑटोलोगस बैंकिंग फॉर देम। जो Okay. आप अभी बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि डोनर, जबकि हस्बैंड के स्पर्म बनते ही नहीं। इन दैट केस नाउ जो अभी कानून आया है वो ये बोलता है कि एक इंसान जीवन में एक बार स्पर्म डोनेट कर सकता है, Okay, और sir. एक ही कपल के लिए Okay. एक ही बारी में डोनेट कर सकता है। जब से कानून आया है तो सैंपल से बिकम, पहले क्या था कि एक इंसान 25 बार सैंपल दे सकता था, Yes. एंड इट वुड गो टू 25 कपल्स। जो नीडी थे 25 couples, ladies could utilize it. But Okay. now it can only go to one woman and the couple. अंदर कहने का मतलब सिंगल वुमन होगी या कपल होगा। Yes, So sir. उस ऐसा रूल आने से रेट्स हैव बिकम वेरी हाई। नॉर्मली आजकल बैंक्स आर चार्जिंग अराउंड ₹20,000 फॉर Okay. वन सैंपल ऑन एवरेज, मे बी 2 सैंपल्स, बट एक ही पेशेंट के। तो 2 वायर यूज कर लिया, एक वायर यूज करा तो 20,000 लग जाता है एक IUI करने का। Just the present rates going on, maybe 4 or 5,000 रुपीज cheaper, बट अगर आप एक रेगुलेटेड वे से लेंगे जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज हैं तो रेट्स इसके काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। तो अराउंड 15,000 मान के चलिए कि खर्चा आता है डोनर फॉर्म, क्वाइट हाई एक्सपेंडिचर। Yes, sir. सर कितना So, खर्चा हो गया अभी हमारा? मतलब पहले भी सर अराउंड खर्चा बढ़ते जा रहा है, खर्चा जैसे खर्चा जैसी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ रहा है। सिंपल वेरी प्रोसीजर था, इट वाज 25,000 विद फ्रोजन सैंपल एक्स्ट्रा 15,000 फॉर। यस सर। 50 हो गया, 50 हो गया, और रिजल्ट है 12 से 14%, 15% या उससे भी यस कम। अब सोचिए अगर हमने 3 बार ऐसा केस किया तो कितना खर्चा आया? 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपया। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम इस चीज़ को एक बहुत ही एक्सेप्टेबल नॉर्म्स पे करें। कीप द यस सर। प्रोसीजर चीपर, मैक्सिमम पीपल कैन यूटिलाइज इट विदाउट ओवर स्पेंडिंग द मनी। Yes, sir. And is in such conditions, patient also get demotivated करेक्ट करेक्ट। after spending so much money, like 1 lakhs के अराउंड अगर खर्च कर रहे हैं, they will feel कि इससे अच्छा तो IVF करा लिया होता, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। चांसेस भी हैं प्रेगनेंसी कंसीव। एब्सोल्युटली 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 एग्री विद यू। ऐसे में पेशेंट्स को क्या, मतलब अभी हमारे व्यूअर्स को क्या मोटिवेट करने के लिए हमें क्या उन्हें बोलना चाहिए? IUI कराना चाहिए, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल लाइक अगर हम लोग तो डॉक्टर हैं सर, वी एज अ डॉक्टर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एडिशनल खर्चे ना कराएं, लेकिन फॉर अ पेशेंट उसे क्या नॉलेज होना चाहिए जब वो IUI कराने जाता है कि नहीं इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। जो कि आज का हमारा सेशन है बेसिकली इसीलिए था कि उसे कितना पता होना चाहिए कि इससे ज्यादा अगर उसे खर्चा लग रहा है तो उसे नहीं कराना उधर। पर सर कई बार पेशेंट ट्रैप हो जाता है, वो स्टार्ट करता है प्रोसीजर, फिर वो खत्म होते होते उसका अराउंड 30-40,000 लग जाता है, जहाँ 25 लगना है अगर उसका 40 लगने वाला है तो वो लग जाता है। नेक्स्ट टाइम वो फिर पेशेंट उस डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो फिर अगेन डॉक्टर चेंज करने के बाद फिर अगेन उसको एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अगर आप देखें ओवरऑल ना, कंफ्यूजिंग है देखो सर। रश्मि देख, डॉक्टर रश्मि देखिए अभी हम हमारा खर्चा कहाँ कहाँ पर आता है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमको अगर एक IUI करना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। यस तो सर। वी नीड ए बॉटल लाइक दिस, यू नो, जैसे बॉटल यस इट्स कॉल्ड सीमेन कलेक्शन जार, यू नो व्हाट दैट ना, जिसके अंदर यस हिल के यस सर। सीमेन नॉट कलेक्शन ऑफ। जार है स्टैंडर्ड, एंड दे आर बेसिकली it comes in the kit like this, and so we give it to the husband, we'll get his semen sample, right? यस इतना क्लियर है? यस सो इसका जो बॉटल का जो रेट है तकरीबन 10 से 12 रुपए का पड़ता है। यस सर। देन वी नीड सच पिपेट्स, वी नीड पिपेट्स फॉर यू नो सीमेन प्रिपरेशन करने के लिए पिपेट का इस्तेमाल पड़ता है। तो एवरी पिपेट इज कॉस्टिंग 10 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। देन वी नीड सच ट्यूब्स जिसके बीच में वी कैरी आउट दी सैंपल प्रिपरेशन, ये ट्यूब्स कहते हैं, एंड दे आल्सो कॉस्ट अराउंड 10 रुपीज पर ट्यूब। हमें से 2 ट्यूब्स चाहिए, 2 पिपेट चाहिए अप्रोक्सीमेटली, so around 40-45 rupees, 50 रुपीज। 10 rupees, 12 rupees, कितना हो गया हिसाब कर, around 50 rupees 50 done। रुपीज। 50 rupees। We need a syringe, so we need a syringe like this. I'll show you. So we use a syringe like this which we use with the cannula to carry out an IUI procedure. So cannula around rupees, this is cannula which will go inside the uterus and carry out an IUI. It costs around rupees 60-70, not more than that. This syringe will cost another 5 or 7 rupees. So I'll say around 75 rupees for this. So यस कितना खर्चा होगा अभी हमारा? Around 100. यस Around 100. Then we need such medias. We need such medias आते हैं सैंपल बनाने में।
So there are Yes. we have the HTF media, then we have got gradient media. So these are the bottles available to us. So I normally keep it in this box and show to people that these are the things we need when we are carrying out any IUI procedure. Yes, sir. तो अगर आप देखें तो कितना खर्चा आ रहा है हमारा इन सबको मिलाकर द होल किट एंड द मीडिया costs us somewhere around rupees 550 or 600 maximum for double density method. So around, so we say that around rupees 600-700 तक का खर्चा आ जाता है पूरे catheters का and spending money on the syringes. So this is all what we spend on the patient. और Yes, sir. एक टेक्नीशियन जो सैंपल बनाता है तो एक्सपेंडिचर उसका होता है which is around rupees 1,500 or 2,000 rupees. And doctor charge in totality for everything around rupees 10 to 12,000 rupees. ये एक तरफ का हो गया. इसके अंदर अब what we can do is I think doctors can reduce their price in case of Yes, sir. इसके अंदर we can do it. कुछ हमें देश के लिए करना चाहिए and we can reduce the price. This is one place where we can reduce the price by 2 or 3,000 rupees and we can get more benefit to the patient. अभी जो रहते हैं injections, on average we take 3 injections. So I think अगर Yes. वो लोग injections खरीद रहे हैं, they can get some discount from in case they buy from any online pharmacy or some place, they can get around 15-20% discount. So इसका खर्चा है तकरीबन 1,000 रुपये का per injection approximately. इन्हें 3 या 4 लगते हैं injections. They can save some money. So they'll cost you around 3,500 rupees. They can save some money on injections in case they buy it online. So this is one thing they have to do. और जो बाकी खर्चे हैं, आई एम क्वाइट अगेंस्ट डूइंग हार्मोनल असेसमेंट, जैसे कि हमें अननेसेसरी ब्लड के टेस्ट नहीं करने चाहिए. जो हमें रिक्वायरमेंट है हमको वही करना चाहिए किसी भी पेशेंट के लिए. सो मेरे विचार से इन केस वी डू इट प्रॉपर्ली वी कैन bring the price down to around rupees 20,000-23,000 rupees for an IUI session. अगर हम ठीक से करें, even less we can do that. Yes, sir. आप क्या बोलते हो? What do you say? Sir, sometimes like IUI is needed to perform in 2 sittings also. Like one. हाँ, correct. तो वो खर्चा Sir, डबल हो जाएगा. Then will it cost how much additional cost doctor you should charge if he is doing 2 sittings? Again 8 plus 8 तो 16,000 हो जाएगा आपका खर्चा. अगर हम 8,000 चार्ज कर रहे हैं, एक का 2 का भी 8,000 होगा. Doctor should not charge extra if he or she is doing 2 sittings. Again it is the feeling what we have. Everyone bills separately. I think the choice of the organization, choice of the doctor, but I think you do have to pay some money when you do it for the second time again because it will add on to your expenditure. देखो, एक IUI एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि हम अपने पेन के साथ लिख रहे हैं. द होल टीम वर्क्स ऑन दैट. सो सबको जानना है जो भी मेरी बहनें जुड़ी हैं हमारे साथ में आज के. In IUI we have got a doctor, we have got an embryologist, a technician, we have to look at the semen sample, we have to generate a report, to take consent forms, there's a nurses involved into this, we have to do an ultrasound, there is these media and kits which we have to buy every time. So it does cost money. But I think the rates they vary from place to place. But I think for an IUI, you should be able to manage the whole IUI from the day one of reporting. We carry out their HSG, hormonal testing in case required. Normally we don't do it. All your blood testings, your ultrasounds, and then the whole IUI procedure should get over in around 22,000 rupees in case we do it properly. But that includes everything. That's not only an IUI. That includes all the drugs, all the hormones, tube testing, husband Everything should be done under 25,000. Yeah, with all the drugs and everything. Yes. Okay. Even in small places as well as large places, it should be under 25,000 only. बिल्कुल, इससे भी कम में होना चाहिए. अगर हम ठीक से करेंगे तो we should. अगर हम ठान लेंगे कि we should do the things properly, the things rates can come down. Okay. We should do it as cheap as possible for our patients. Okay, sir. So I think maximum things you have covered. I think people have know the answers, whatever they wanted to know about IUI. Any queries you have today? In case you have any queries, you can see in the. Anyone is. So we.
So hi Sakshi, how are No you? I can questions see in the Shiv. chat box, sir. Yeah. So I think it was a lovely session we had. Thank you. Just remember that IUI is a very basic technique. We should do it for whenever indicated. अगर ट्यूब्स खुली हैं और स्पर्म काउंट अच्छा है तो हमको IUI करना चाहिए. It's a very nice way to help people. The outcome of an IUI cycle is around it's somewhere between 12 to 15% per cycle. That's a very good outcome. We should not jump to Yes. IVF. So all the Yes. young girls which we have or any age when they come to us, अगर ट्यूब्स ओपन है और स्पर्म काउंट अच्छा है, we should be doing their IUI before I. we shift to IVF. This is very very important. And once we do an IUI, we should do minimum 2 to 3 IUIs minimum. किसी भी साइकिल में 2 IUI नहीं करते हैं. सिंगल IUI is more than enough for a good outcome. So we should do a single IUI and not 2 IUIs. That is very very Okay. important. फिर एक सवाल आता है कि IUI कब करना चाहिए. So normally IUI can be done anytime after 24 hours. We can do it anytime after 24 hours without doing an ultrasound. But the right method which we normally say is that we should do an ultrasound at 36 hours. So we give a trigger. जब भी in IUI when we give somebody tablets, उनके जब egg बन जाते हैं, then we rupture the eggs by giving an injection called HCG. तो इसे कहते हैं trigger injection. पहले हम लगाते Yes. हैं 3 या 4 HMG, then we give the trigger. And by triggering we mean by giving her an HCG injection. जब हम ट्रिगर करते हैं तो एग टूट जाता है बॉडी के अंदर ओवरी में और दिस एग कैन गेट फर्टिलाइज. सो द ट्रिगरिंग इंजेक्शन इज नॉर्मली 1. HMGs are normally 3 to 4. This is what is the this all Yes. add on to the expenditure in a young girl, and this is what we normally do. So I think we should do for all. किसी को endometriosis है, किसी को PCOD है, somebody is having an unexplained infertility, we should be doing an IUI before we shift to a more invasive procedure like IVF. Age is a very Yes. big factor. Even if age is 35, 38, 39, 40, chances may come low, but IUI should be the first line of treatment. So we Yes, should do sir. IUI with clomiphene, letrozole. We can give them HMG injections. Yes. But IUI should be done before we shift to IVF in case the tubes are open and sperm count is borderline or low. But the end sperm count after sperm preparation is more than 3 to 5 million total motile sperm count. We should do an IVF. That will be my message to everyone around. Endometriosis, poor ovarian reserve, uh, PCOD, unexplained infertility, any sexual dysfunction in case couple has, any male factor, I think IUI is a must. So tubes खुली हैं और sperm count ठीक है, तो पहला option should always be IUI. Just what I'd like to tell you. Yes, sir. Sir, sometimes dose strength like HMG or HCG, sometimes we have to give higher strength. Then also cost varies, na? Cost may increase with the strength. मैंने आपको बोला कि एक इंजेक्शन कॉस्ट अराउंड ₹1,000 approximately. Yes, sir. Maybe rupees 700, 750. So in case we give more number of injections, they have to spend more money. So more number of injections, you need to spend more money. So keep adding rupees 750 or 1,000 for every injection. The rates will go high. Okay. But हमें IUI as far as possible हमें टीके कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए. And we should be normally giving them tablet clomiphene or letrozole. तो पूरा खर्चा तकरीबन 250-300 में सारा 400 में पूरा केस हो जाता है. We start adding महंगे injection. So many people they give a lot of injections and patients demand Yes. injections. When you add more injections, more price. So we have to keep it as cheap as possible and give more of oral drugs than giving them injectables. Injectables will make the treatment more expensive, and along with that, there can be more complications. Okay. By giving more injections, there will be more chance of they're going into ovarian hyperstimulation, जबकि ovary में अंडे बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं. They Yes. can also have a high chance of multiple pregnancy. Okay. This is what I feel like. So we should keep it very simple and do it in a very defined way. And I think the outcome is pretty good in IUI. So we must do IUI for the young couples. Yes, sir. Okay, sir. I So thank think you. everything is Anything covered. else? Yeah. So thank you so much, Rashmi, for joining Thank us you. and had a lot to learn from you, how things work in Chhattisgarh and Raipur. And so for all the audience, it was lovely having you here. I think we meet every 15 days and pick up a new topic and we interact.
Meanwhile, we have our numbers displayed here, and our numbers are here. So please feel comfortable to call us up anytime. We are here with you. In case you need any guidance, send us a WhatsApp message, or visit our website and talk to us. We are there on a lot of, like everyone, we are on social media. We got a website, we got our applications. So do contact us, whatever you want to know from us, and we'll be very happy to help you out. Save our numbers, and thank you so much. God Thank you, bless all sir. of you. We'll meet again in 15 days. Thank you. Sure. Thank you, Rashmi. Thank you. Bye. Thank you, Take sir. care. Bye, sir. Thank you. Bye.